Hello my dear students, let me welcome you to the first lecture of 12th standard physics lesson, that's thermodynamics. ये जो लेसन है इसके पहले लेक्चर के साथ जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे और बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते पहले सवाल से. Question number 1, there are 10 questions and it will not take much time because it's a theory segment out there. Heat is a form of dash, energy, momentum, electric field, magnetic field. ये 9th या 10th स्टैंडर्ड वाला भी बंदा बताएगा. Heat is a form of energy. Actually it was not regarded, as I told you in the lecture, it was treated as a fluid. चलिए दूसरा सवाल. After some time what happens if a hot object comes in contact with a cold object? हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट के साथ में अगर आ जाता है तो हॉट ऑब्जेक्ट हीट लूज आउट करता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट गेन करता है और अंत में व्हेन दे रीच थर्मल इक्विलिब्रियम दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है. देखते हैं ऑप्शन. बोथ ऑब्जेक्ट्स रीच एट द सेम टेम्परेचर. या द आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इज ए. बचे हुए ऑप्शंस भी देख लेते हैं आज. बोथ द ऑब्जेक्ट्स रिमेन एट द सेम टेम्परेचर. नो. Temperature of hot body increases, no. Temperature of cold body decreases, no. The correct option is A, first option. Thermodynamics mostly deals with what it deals with: measurement of quantity of heat, transfer of quantity of heat, change of state, conversion of heat into other forms of energy. Yes, that's the right answer. It deals with the conversion of heat to other forms of energies, even other forms of energies back to heat. It deals with the conversion of various forms of energies to heat and heat to other forms of energy. क्योंकि it was not regarded as a form of energy initially, fluid था, caloric था, and rest is all history. Question number 4. In 1798, scientist Benjamin Franklin observed. What he observed? Heat is a form of energy. Yes, he did. Heat produced depends on the work done. Yes, more the work done, more will be the heat produced. Heat is measured in terms of temperature. Yes, more the temperature, more is the heat. Answer is all of the above. Question number 4, the answer is D. Question number 4, the answer is D, that is all of the above. पांचवें क्वेश्चन का रुख करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. If the two thermodynamic systems are in thermal equilibrium, जब थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है तो उन दोनों का टेम्परेचर सेम होने की वजह से there is no net loss or gain of heat by either of the two components, let us say system and surrounding or two bodies. The answer is, if the two thermodynamic systems are in thermal equilibrium, it implies their dash is the same, their temperature is same. The answer is A. Heat contains, yeah, temperature is the same. The answer is A, first option. चलिए रुख करते हैं छठे सवाल का. If a thermodynamic system is in equilibrium with the surrounding, okay, now they are talking about the equilibrium between the system and the surrounding, तो क्या होता है? Number 1, temperature of the system and surrounding is the same. Yes, it is. सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम होता है अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो. बचे हुए ऑप्शंस को एक बार तलाश लेते हैं. प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेम. नो, इट्स नॉट दैट केस. थर्ड, मास ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज सेम. नो. प्रेशर, वॉल्यूम, मास एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज सेम. नो, इट्स ओनली द टेम्परेचर विच इज द सेम. इसलिए छठे सवाल का जवाब टेम्परेचर या हीट कंटेंट सेम है, इसलिए छठे सवाल का जवाब है ए, फर्स्ट ऑप्शन. ए, फर्स्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. कब? तो यहां माइक्रो और मैक्रो बात हो रही. माइक्रो इज वेरी स्मॉल, मैक्रो इज बिग. तो जब दोनों ही प्रॉपर्टीज जो है या दोनों वेरिएबल्स छोटे या मोटे वक्त के साथ बदलते नहीं है तो we say it is in thermal equilibrium. टेम्परेचर भी नहीं बदलता है और प्रेशर भी नहीं, and so on and so forth. The answer is, a system is said to be in thermal equilibrium if macro and microscopic variable change. No, they do not rather.
Micro and macro variable do not change with time. Microscopic, macroscopic variable do not change with temperature, and micro and microscopic variable does not change with temperature. The answer is micro and microscopic properties, they will not change with time. वक्त के साथ माइक्रो और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी नहीं बदलते हैं. सही जवाब है इसका बी, सेकंड ऑप्शन. इसका सही जवाब है बी, सेकंड ऑप्शन. सही जवाब है बी, सेकंड ऑप्शन. चलिए रुख करते हैं आठवें सवाल का. हीट एडेड टू द सिस्टम इज इक्वल टू. जब हम हीट ऐड करते हैं सिस्टम को, Q इज पॉजिटिव, तो अ चेंज इन इट्स इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. चेंज लेट अस से बढ़ती है तो चेंज हो रही है. ओके, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, वर्क भी हो सकता है. द आंसर इज सब कुछ हो सकता है. सम ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स. द आंसर ऑफ द 9th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन इज डी, 4th ऑप्शन. द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज डी, 4th ऑप्शन. रुख करते हैं 9वें सवाल का. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिस्क्राइब द सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम. कौन से उदाहरण है कि सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कही जा सकती है. हॉट ऑब्जेक्ट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर. इज इट थर्मल इक्विलिब्रियम? नो, वो बाद में आएंगे. Two objects of exactly same temperature have an impenetrable heat barrier between them. No, there is no need for heat barrier. ये भी नहीं है. Two objects of exactly the same temperature are in contact with one another. Yeah, that's what we say is thermal equilibrium. An object is heating up due to the nearby fireplace. No, it's not. The answer is C, third option. Question number 9. The answer is C, third option. रुक करते हैं आखिरी और आज के 10वें सवाल का. द कंडीशन वेयर टू सब्सटेंसेस इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर बिकम द सेम टेम्परेचर, वी से इट इज थर्मल इक्विलिब्रियम. वी से इट इज डी, थर्मल इक्विलिब्रियम. तो कोई ज़्यादा डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने थियोरी ठीक से पढ़ लिया है तो नेचुरल है कि ये सभी सवालों के जवाब आपको बड़े आसानी से आ जाएंगे. इस टॉपिक में हमने कवर किया कि हीट वाज कंसिडर्ड एज अ फ्लूइड कॉल्ड कैलोरिक, देन वी नो इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हीट, और वहाँ से फर्स्ट 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तक हम आए हैं. आशा करते हैं कि ये 10 सवाल के एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए हैं. कल भी ऐसे ही कुछ सवालों के साथ रूबरू होंगे. तब तक के लिए रुक जाएंगे. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे.